everyone, welcome to Think Like UPSC. Today we will study Jawaharlal Nehru as a thinker, his ethical foundation on moral compass, what was his views on humanism, rationality and secularism, and what were his main contribution like peace, international and cosmopolitanism, tolerance and respect के लिए, culture के लिए, scientific temper, liberty and freedom के लिए. तो Nehru believed basically nation cannot progress until its individuals are free to progress. This was his way of thinking, that he believed an individual can never progress until individual are set free to progress, and this is why he is being treated as liberty and freedom was these are the basic components given by Jawaharlal Nehru. So in Karachi session he drafted a bill on fundamental rights in 1931 when a constitution was in progress. Peace, he opposed colonialism and Cold War. He was against this, and as it threatened, why? Because used to threaten peace along the prosperity, and Nehru propounded what idea of non-alignment and Panchasheel as the moral of foundation of Indian foreign policy. International and internationalism and cosmopolitanism means here Nehru believed that Vasudhaiva Kutumbakam, that whole world is your family, and favored international cooperation and multilateralism. And we can say he convened that Asian relations conference, and shows his what compassion for welcoming refugee from Pakistan. We gave them the space to settle in India, and later on we even consider the refugee, they came to India and we gave them a place too. Now they are Indians. So that was his big hurt. Tolerance and respect, when we talk about it, he gave what due respect, due space for entire social and political spectrum. Here in India, Nehruji was our first prime minister after independence, and even he was the first cabinet under his cabinet that non-Congress leader also got the place, like Ambedkar ji, Shyama Prasad Mukherjee, etc. So you can say Nehruji, while he was into this, while he was politically delivering his duty and he was elected as a PM, so he gave the he gave opportunities to other people who were not into their party, who were not into his party also, like Ambedkar, Shyam Prasad Mukherjee can quote it, so we can learn from him. कल्चर में जब हम बात करते हैं तो कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड द स्प्रिट. हाउ ही बिलीव्ड दैट कल्चर शुड बी डायरेक्टेड एट डेवलपिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. कल्चर ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल को डेवलप करे और उसकी स्प्रिट को ब्राइडन अप करे. और इसीलिए उन्होंने बोला कि फॉर इंस्टेंस ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ योगा बट रिजेक्टेड मैनी ऑर्थोडॉक्सीज ऑफ द इंडियन सोसाइटी. बहुत सारी ऑर्थोडॉक्सिस पॉलिसीज थी जो इंडिया की, उन्होंने रिजेक्ट करी थी बिकॉज हिज वे ऑफ थिंकिंग वॉज साइंटिफिक. वो हमेशा हर चीज़ के लिए साइंटिफिक टेम्पर के लिए लोगों को बोलते थे. एडवोकेटेड रेशनल एविडेंस एंड बेस्ड अप्रोच टू गवर्नेंस. तो ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस के लिए उन्होंने बात करी थी. इन्होंने बोला था अपहेल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंडिविजुअल राइट्स, इंस्पायर गांधी एथिक्स. तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द गांधी एथिक्स, येट लर्नड मेनी ऑफ द मॉडर्न टुवर्ड्स, येट ही हैड अ inclination towards a modernity and industrial outlook. So we can say his quote was, facts are fact and will not disappear or on account of likes. फैक्ट जो है वो आपके फैक्ट ही रहेंगे, बट दे विल नॉट डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइक्स. आपकी वे ऑफ थिंकिंग पे वो डिसअपियर नहीं हो जाएंगे. देन जवाहरलाल नेहरू इवन थॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ दिया था उन्होंने. तो जब भी जवाहरलाल नेहरू को कोट करने के लिए आता है, उनको एक्सप्लेन जवाहरलाल नेहरू एज अ थिंकर, तो हम सबसे पहले पहला पॉइंटर डालेंगे एथिकल फाउंडेशन एंड मॉरल कंपास में डालेंगे. सेकंड हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी. थर्ड हम बोलेंगे लीडरशिप एंड इंटीग्रिटी. फोर्थ विजन ऑफ इंडिया. एंड फिफ्थ इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कंपेशन. और फिर हम सीधा स्टार्ट करेंगे कि नेहरूज एक्शन वॉज रूटेड इन ह्यूमनिज्म, रेशनैलिटी एंड सेकुलरिज्म. फिर बोलेंगे ही वॉज एथिकल थिंकिंग. हिज एथिकल थिंकिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस वे से इन्फ्लुएंस हुए थे, वो खुद इन्फ्लुएंस हुए थे, तभी तो वो हमें इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं. साइंटिफिक टेम्पर से, ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस से, एंड ही वॉज इवन इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन एथिक्स. फिर हम लिखेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल्स फ्रीडम के लिए, कंपैशन चैंपियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड फ्री प्रेस के बारे में बात करी थी उन्होंने. और आगे उन्होंने बोला था ही बेसिकली एम्फसाइज ऑन सेकुलरिज्म प्लूरलिज्म एज अ कोर नेशनल वैल्यू. दीज आर द कोर नेशनल वैल्यू, जिसको हम जहां सेकुलरिज्म, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दिस इज व्हाई. सो एथिक्स में एप्लीकेशन हम कैसे डालेंगे, हिज कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज सेट एन एग्जांपल ऑफ फॉर द एथिकल गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. लीडरशिप एंड इंटीग्रिटी में जब हम बात करते हैं इनके बारे में, तो हम बोलते हैं कि नोन फॉर द पर्सनल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस. ही वाज वेरी committed to the public service. That's why even he appointed non-Congress members as a part of its cabinet. Next, we can say he lived a very simple life despite holding such a powerful rank, and promoted meritocracy and institutional development. And this was a time when in India IIT were made and planning commission were set up.
एथिकल टेकअवे हम इससे क्या सीखते हैं? नो पार्टीशंस, आर्ट रिफॉर्म ओरिएंटेड एंड मॉरली रिस्पॉन्सिबल थी। विजन ऑफ इंडिया की अगर हम बोलते हैं तो ही एडवोकेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जो उन्होंने बात करी थी, एज वेल एज साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इसमें हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग जब उन्होंने करी थी तो 5 ईयर प्लान फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, जिसमें इन्होंने गरीबों को भी अपनी पॉलिसीज का पार्ट बनाया था। एंड बिलीव्ड इन लॉन्ग टर्म नेशनल बिल्डिंग एंड नॉट शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म। शॉर्ट टर्म में आपकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपका आप एज अ पीएम अभी कुछ काम करते हो जो अभी शॉर्ट टर्म में आपको इंपैक्ट दिखाता है, नेक्स्ट इलेक्शन आप जीत सकते हो, बट उसके बाद लॉन्ग रन में आपको याद किया जाए तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे नेशन को बिल्ड किया जाए। इसमें एज अ ब्यूरोक्रेट आप क्या सीख सकते हो? लॉन्ग टर्म आप इंपैक्ट छोड़ने के लिए, जैसे नहीं आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो किया था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रोड बना दी। तो अभी तक हम हर जगह क्या कर रहे हैं? उनको कोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, displayed empathy, especially in his letter to Indira Gandhi, promoting moral courage and resilience, encouraged youth in what? Youth to develop a sense of duty towards society. एग्जाम्पल में बोलेंगे कि his emotional intelligence helped him deal with the trauma of partition while focusing on unity and healing. अब इसमें क्वेश्चन ये, जैसे ये देखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू इज रिमेंबर्ड नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज अ एथिकल विजनरी। वाई? बिकॉज इसमें बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या है? इंडिया के फर्स्ट पीएम थे एंड वॉज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट बट ऑल्सो एथिकल थिंकर हु ब्लेंडेड मॉडर्निटी विद मॉरलिटी एंड हिज ideas continued to influence the Indian democratic and ethical framework. तो इसमें हम बोलेंगे कोई emphasize on constitutional morality, इसको एक्सप्लेन करेंगे, सेकुलरिज्म के बारे में बताएंगे, इंडियन डिग्निटी को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम अगला बोलेंगे साइंटिफिक टेम्पर, ही प्रमोटेड अ रेशनल डिसीजन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज पर्सनल लाइफ रिफ्लेक्ट्स इंटीग्रिटी एंड सिंप्लिसिटी इन द हाईएस्ट ऑफिस एंड नेहरूज कमिटमेंट टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट शोड हिज बिलीफ इन सोशल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर हम कंक्लूड कर देंगे। अब इसमें इन सभी को हम एक एक करके और 2-4 पॉइंट ऐड कर देंगे। कैसे? कि सेकुलरिज्म को एक्सप्लेन कर दिया, इंडिविजुअल डिग्निटी बोल दी, और हमने बोल दिया इसमें कि हिज लीडरशिप विजन वाज आल्सो known as like transparency, commitment to the public services थी, and he promoted meritocracy and institution development बोल दिया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल देंगे, he always has a sense of duty towards the society, तो इमोशनल इंटेलिजेंस डाल दिया हमने इसमें। और विजन फॉर इंडिया हम बोलेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड सोशल जस्टिस डाल दिया। अब नेक्स्ट हम इसमें बोलेंगे लाइक while holding leadership इंटीग्रिटी में he was holding a very eminent post, still he used to live a very simple life। तो नेहरू's ethical thinking grounded in reason, empathy, justice makes him a relevant figure in studying the moral foundation of public life in India. So this is how we have covered Jawaharlal Nehru, India's first PM. So his moral and political value, visionary leadership, constitutional morality, integrity and public services, integrity and public services. तो हमने क्या है, जिस तरह से गांधी जी को पहले कवर किया था, स्वामी विवेकानंद को कवर किया था, हमने यहाँ वेरी शॉर्ट वेरी क्रिस्प में हमने इनको कवर कर लिया। हमने जवाहरलाल नेहरू कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी चाणक्य। So bye for now. See you tomorrow. Stay healthy, stay happy, and keep spreading positivity.